The Graduate Management Admission Test, or GMAT, is the doorway to MBA programs all over the world. The current version of GMAT is known as GMAT Focus Edition. So some changes have been made to the original examination in terms of duration, scoring and content to give birth to this new exam, that is a Focus Edition. Now what can we say about this Focus Edition? In a nutshell, you can say that GMAT Focus Edition is more focused, more accessible and less daunting than the original GMAT examination. So today we will be discussing how your GMAT Focus Edition is different from your original GMAT. What are the changes that has been made and how it will affect your preparation strategy. First and the biggest change is exam duration. Your original GMAT examination was a marathon of 3 hours and 7 minutes plus additional time for the breaks. You had 4 sections to attempt. First was your quantitative reasoning, second verbal reasoning, third integrated reasoning and fourth AWA, in which you had to write an essay in 30 minutes. Overall, you had to give or you had to attempt 80 questions in 3 hours and 7 minutes. Sounds taxing. Now let's talk about GMAT Focus Edition. In GMAT Focus Edition, the exam duration is 2 hours and 15 minutes long. It has 3 sections and the duration of each section is same. So first is your quantitative reasoning, in which you have 21 questions. Second is verbal reasoning, in which you have 23 questions. And last is your data insights, in which you have 20 questions. So overall, you had to answer 64 questions in 2 hours and 15 minutes. Plus you get an additional optional break of 10 minutes. So what can we say about your GMAT Focus Edition? It is 1 hour less than the original GMAT, making it less fatigue and better focus than the original examination. So this is one of the most or the best student-friendly changes that has been made to the GMAT Focus Edition. Now let's talk about section order. In original GMAT, it was rigid, means you only had 3 options in which order you want to attempt your GMAT examination. But that is not the case for GMAT Focus Edition. I am asking you a question. अगर आपके पास 3 options हैं, means आपके पास सामने 3 dishes हैं and you have to eat all 3 dishes. Now the option in front of you is कि आप किसी भी order में खा सकते हो. तो how many possible combinations are there? There are 6 possible combinations कि आप किसी भी order में खा सकते हो. फर्स्ट में आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं, सेकंड के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं एंड लास्ट में आपके पास जो बचा हुआ है आप उसको खाओगे. तो मीन्स इन अ नटशेल आपके पास 6 ऑप्शंस हैं. अगर आप यही चीज़ सेक्शंस को लगा के देखो, अगर आपके पास 3 सेक्शंस हैं एंड आपको उन 3 सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है, तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आ देयर? 6 ऑर्डर्स आ देयर. तो ये 6 ऑर्डर्स आपको GMAT फोकस एडिशन प्रोवाइड करता है. मीन्स यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजी से प्ले कर सकते हो. आप अपने आप को पेस कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग खेल सकते हो एंड यू कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड एंड बेटर फोकस्ड फॉर योर एग्जामिनेशन. अगर आप क्वांट्स में अच्छे हो, स्टार्ट विद दैट. इफ़ यू आर गुड इन वर्बल, स्टार्ट विद दैट. सो GMAT फोकस एडिशन ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है. देयर आर 6 ऑप्शंस इन विच ऑर्डर यू वांट टू अटेम्प्ट योर GMAT एग्जामिनेशंस एंड ऑल आर अवेलेबल टू यू. सो यू कैन चूज whichever order that suits you fit. Now let's talk about exam content or syllabus. First, verbal. In verbal, sentence correction has been completely removed. Means जो आपका GMAT Focus Edition है, उसका जो verbal का content है वो आपका 33% से reduce हो गया. अब आपको verbal में खाली reading comprehension and critical reasoning की study करनी है. Let's talk about quant. In quant, 2D and 3D geometry has been completely removed. Means आपका जो quant का syllabus है वो भी आपका 20 to 30% remove हो गया है. And furthermore, आपके quants में जो question है वो सारे आपके problem solving questions रहेंगे. आप means data sufficiency के questions आपके quant में नहीं आएंगे. That is also a plus point. What are the further changes? Further changes is AWA has been completely removed. जो AWA में आपको 30 minutes में पूरा ऐसे लिखना पड़ता था, वो आपका completely remove हो गया. Now the fourth change is that कि आपका जो integrated reasoning था that has been transformed.
आपका जो इंटीग्रेटेड रीजनिंग है इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म टू अ न्यू सेक्शन। मीन्स आपके जो 2 सेक्शंस थे इंटीग्रेटेड रीजनिंग और AWA वो चेंज हो गए हैं। उनके बदले एक नया सेक्शन आया है दैट इज़ डेटा इंसाइट्स। एंड डेटा इंसाइट्स में आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट इज़ योर इंटीग्रेटेड रीजनिंग के क्वेश्चंस एंड सेकंड इज़ योर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। सो इफ़ यू विल सी आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप ड्रास्टिकली प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो ड्रास्टिकली चेंज होगी। क्यों? क्योंकि कंटेंट पूरा चेंज हो गया है एंड सम ऑफ द कंटेंट हैज़ बीन रिमूव्ड, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कोरिंग। ओरिजिनल GMAT की जो स्कोरिंग थी वो 200 to 800 जाती थी एंड उसके जो स्कोर्स होते थे वो 10 के मल्टीपल्स में होते थे। मीन्स योर स्कोर वुड बी 650, 660, 670, 700, 710 लाइक दिस। इन द सेम वे जो GMAT फोकस एडिशन का स्कोरिंग है दैट इज़ ऑल्सो द सेम रेंज। वो 205 से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स विथ 805 एंड ये भी 10 के मल्टीपल्स में इंक्रीज होता है। ओके लेकिन जो स्कोरिंग है वो हमेशा 5 में एंड करती है। मीन्स जो डिफरेंस है आपके जो GMAT फोकस एडिशन के स्कोर्स होंगे वो इस टाइप से होंगे 645, 675, 665, 655, 705, तो हमेशा 5 में एंड करेंगे। तो आपके स्कोर से कोई भी ये डिड्यूस कर सकता है कि आपने ओरिजिनल GMAT दिया था या GMAT फोकस एडिशन दिया था। नाउ देयर इज़ अ $1 million क्वेश्चन। व्हाट इज़ दैट? अगर आपका ओरिजिनल GMAT में स्कोर लेट्स से दैट 700 है एंड किसी का फोकस एडिशन में स्कोर 705 है, कैन यू से दैट कि ये दोनों स्कोर बराबर है? यू कांट से दैट। व्हाई इज दैट? क्योंकि कंटेंट जो है वो चेंज हो चुका है एंड स्कोरिंग पैटर्न इज चेंज। तो जिसकी वजह से स्कोरिंग पैटर्न में क्या चेंज हुआ है? स्कोरिंग पैटर्न में ये चेंज हुआ है कि आपके जो ओरिजिनल GMAT था उसमें आपके खाली 2 सेक्शंस इंक्लूड होते थे स्कोरिंग के लिए। दोज वेर क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग। आपका इंटीग्रेटेड रीजनिंग एंड AWA वेर स्कोर्ड सेपरेटली। बट जो फोकस एडिशन है उसमें तीनों सेक्शंस आपके इक्वल वेटेज कैरी करते हैं। सो यू कांट स्लैक ऑफ इन एनी सेक्शंस। आपको तीनों सेक्शंस पे इक्वल अटेंशन पे करना पड़ेगा एंड दीज चेंजेस की वजह से एंड क्वेश्चंस भी क्या हो रखे हैं? चेंज हो रखे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन ऑल्सो चेंज्ड। तो हर एक क्वेश्चन का वेटेज भी क्या है? डिफरेंट है। इन चेंजेस की वजह से क्या हो रखा है कि जो आपके स्कोर्स हैं वो आप सीधे सीधे कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के पहले 700 आए थे एंड किसी के फोकस एडिशन में 705 हैं तो दोनों इक्वल हैं। दैट इज़ नॉट द केस। अगर आप देखोगे तो जो आपका अगर किसी ने फोकस एडिशन में 700 स्कोर किया है तो इफ़ यू विल कंपेयर इट टू द ओरिजिनल GMAT स्कोर तो वो ओरिजिनल GMAT के 750 स्कोर से कंपेरेबल है। मीन्स 645 अगर आप देखोगे तो दैट विल बी द न्यू 700। सो दिस इज़ द कंपैरिजन। ये आपका एक इक्विवेलेंस है। अगर आपका 645 मार्क्स आए हैं फोकस एडिशन में तो इफ़ यू आर कंपेयरिंग इन विद द ओरिजिनल GMAT एग्जामिनेशन तो उसके स्कोर के कंपैरिजन में दिस इज़ इक्वल टू 700। नाउ 6 एंड देयर आर सेम चेंजेस फॉर अदर स्कोर्स ऑल्सो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? GMAT की वेबसाइट विजिट कर सकते हो एंड इट विल गिव यू। उन्होंने क्या कर रखा है कि इस पूरी जो कंपैरिजन है वो लिस्ट कर रखी है एंड इट विल गिव यू एन आइडिया कि आपका जो स्कोर है वो ओरिजिनल GMAT के स्कोर के साथ कहाँ लाई करता है। एंड वन मोर थिंग, आपका जो GMAT स्कोर एग्ज़ाम टेकिंग है, नाउ यू कैन गिव GMAT एग्ज़ाम 5 times अ ईयर एंड आपके 2 सक्सेसिव अटैम्प्ट के बीच में मिनिमम 16 डेज़ का ब्रेक होना चाहिए। लाइफ टाइम में आप जितने चाहे उतने बार GMAT दे सकते हो। देयर इज़ नो लिमिट ऑन दैट, बट देयर इज़ अ लिमिट कि आप एक ईयर में कितने GMAT एग्जामिनेशन दे सकते हो एंड दैट इज़ इक्वल टू 5। एंड आपका जो GMAT स्कोर होता है दैट इज़ वैलिड फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ योर एग्ज़ाम। तो आपके जिस दिन आपने एग्ज़ाम दिया है उस डेट से 5 years तक आपका GMAT स्कोर वैलिड होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनी न्यू फीचर्स दैट हैज़ बीन एडेड। सो GMAT फोकस एडिशन में कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं। व्हाट आर दोज? फर्स्ट इज़ द रिव्यू एंड एडिट। मीन्स आप हर सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को बुक मार्क कर सकते हो। ओरिजिनल GMAT एग्जामिनेशन में क्या होता था कि एक बार आपने आंसर दे दिया दैट इज़ लॉक, यू कैन नॉट चेंज इट। बट इन GMAT फोकस एडिशन आपके पास ऑप्शन है। व्हाट इज़ दैट ऑप्शन? कि आप अपने क्वेश्चंस को बुक मार्क कर सकते हो
एंड जब आप क्वेश्चंस को बुक मार्क करते हो, एट द एंड ऑफ द सेक्शन आपको सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो आपने बुक मार्क किए थे। एंड नाउ यू कैन रिव्यू दोज क्वेश्चंस एंड उन क्वेश्चंस में से आप 3 क्वेश्चंस तक के आंसर्स चेंज कर सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड और वेरी प्लस पॉइंट, क्योंकि ये आपका एक सेफ्टी नेट क्रिएट करता है। आप सिली मिस्टेक्स को आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सिली मिस्टेक्स। अगर आपकी मिस्टेक होगी तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज योर आंसर, क्योंकि रिव्यू एंड एडिट आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सेकेंड चेंज इज़ दैट कि आपके सारे सेक्शंस आप अडेप्टिव हो गए। मीन्स ना ही आपका वर्बल एंड क्वांट्स अडेप्टिव है, बट योर डेटा इनसाइट्स इज ऑल्सो अडेप्टिव। So these are the new features that had been changed in your GMAT Focus Edition. Now the main question, is your Focus Edition harder or easier than the original GMAT? कुछ लोग कहेंगे कि ये हार्डर है, कुछ लोग कहेंगे ईजियर है। ईजियर किस लिए है? क्योंकि आपका कंटेंट चेंज हो गया है। ओके, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। सेकेंड थिंग, ये आपका ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है एंड यू हैव मोर ऑप्शंस रिगार्डिंग in which order you want to attempt your examination. Why it is harder? कि आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज हो गए हैं। नाउ ईच क्वेश्चंस कैरी मोर वेटेज। मीन्स अगर आपने कोई गलती कर दी तब आपके क्या हो गए, स्कोर फ्लक्चुएट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो व्हाट कैन यू से अबाउट, एक अगर समराइज करना चाहोगे तो समराइजेशन में क्या कहोगे, क्या ये हार्डर है, क्या ये ईजियर है? मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ वर्थलेस टू कंपेयर दीज टू एग्जामिनेशन। आप ओरिजिनल जीमैट को नए जीमैट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रक्चरली बोथ द एग्जामिनेशंस आर कंप्लीटली डिफरेंट एग्जामिनेशंस। वो अलग चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं। योर जीमैट फोकस एडिशन इज़ मोर फोकस्ड इन योर बिजनेस एनालिटिकल स्किल्स। वो आपके एनालिटिकल स्किल्स को ज़्यादा टेस्ट कर रहा है। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर ओरिजिनल एग्जामिनेशन। तो इन कंक्लूजन व्हाट मैटर्स? इन कंक्लूजन आपकी कंसिस्टेंट प्रिपरेशन एंड हार्ड वर्क मैटर्स, कि आप कितने कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते हो एंड क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो। सो इन अ नटशेल आई विल से दैट कि डोंट वरी अबाउट कि क्या ये हार्डर है, क्या ये ईजियर है। आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। पे फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, पे फोकस ऑन योर स्ट्रेटेजी, because your dream GMAT school college is waiting for you. So that's all for today. We will meet in the next video and keep preparing, and all the best for your GMAT preparation.